سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، اس وقت ان کے لبوں پر ایک آیت شریفہ نظر رہی تھی اور اے ہمارے رب، ان لوگوں میں ان میں سے ایسا رسول بھیجے جو ان پر تیرے آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک آپ قوت والے اور آپ حکمت والے۔ یہ وہ دعا تھی جو دل کے گہرائیوں سے نکلی، یہ مراد خلیل اور آرزو ابراہیم کی، امام عالم کی التجا اور تمنا تھی، تاکہ اس مقام پر مبارک زبان سے ادا ہونے والے قرآنی کلمات تھے اور رب العالمین کے دربار میں شرف قبولیت سے ہمکنار ہے۔ لہٰذا اسی دن سے قدسیوں میں اس رسول مطلوب کا تذکرہ ہونے لگا، آسمانوں میں ان کا چرچا ہونے لگا، انبیاء و مرسلین اس نبی آخرت کی بشارت دیتے رہے، ان کو صحف ان کا اوصاف گناتے رہے، روح اللہ نے ان کی بشارت سنائی تو موسیٰ کلیم اللہ نے ان کی اطاعت کی مذمت۔ شب و روز گزرتے رہے، ادوار بدلتے رہے، آفتاب کی زیارت کی تمنا میں جا باشد کرتا رہا، مہتاب شوق دیدار میں چاندنی میں چھاور کرتا رہا۔ جب صبر کا ارادہ رہا تو ماہ ربیع الاول 1570 عیسوی روز شنبہ کے روز بلد امین مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش کے سب سے معزز خاندان بنو ہاشم میں عبد المطلب کی رخت جگر عبداللہ کے گھر بی بی آمنہ کی اپنے مبارک سے اس ماہ رسالت کی ولادت باصالہ ہوئی۔ اس کی پرانی کرنوں سے شرک کی ظلموں کو کافور ہو سکے۔ بھائیو بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیو، آپ کی ولادت کے اعتبار سے علماء کے 3 قول، بعض کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 9 ربیع الاول، لیکن جمہور علماء کے اتفاق یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو شنبہ کے روز صبح صادق کے وقت آپ کی ولادت باصالہ ہوئی۔ آگے بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیو، ماں نے تو صرف محمد کہا، دادا نے تو صرف احمد کہا، مکہ والوں نے تو صرف صادق و امین کہا، لیکن عالم انسانیت نے کہا یہی بننا کا رسول کامل ہے، یہ امام الرسول ہے، ہادی السبل ہے، دانا الکل ہے، شفیع المذنبین ہے، حبیب الانبیاء ہے، رسولوں کے امام ہے، شہنشاہ عرب و عجم ہے، فخر الامم ہے، رؤوف الرحیم۔ لیکن قدرت اپنے حبیب المخلوق کے پیارے پیارے الفاظ و خطاب پر مطمئن ہوئی اور رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب رحمت للعالمین ہے، شاہد و مبشر ہے، داعی الی اللہ ہے، سراج منیرہ ہے۔ میں تو اپنے رسول کو پیار سے یا ایھا المصلی کہوں گا، پیار سے یا ایھا المدثر کہوں گا، مایوسیوں میں ورفعنا لک ذکرک سے سکون بخشوں گا، یاسین الطہر کا پیارا پیارا خطاب دوں گا، اس میں قسمت بناؤں گا اور مقام محمود سے سرفراز کروں گا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمد نے ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكلمة الله بشيء علينا۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر اسلام وہ ایک شعر پڑھتے ہیں، وشق له من اسمه وجهه، اور نکالا اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو اپنے نام سے تاکہ آپ کا مرتبہ بدل کر دے۔ فضل عرش محمود، بس عرش والا محمود ہے، وهذا محمد، اور یہ محمد ہے۔ العرش بری کا وہ شہنشاہ محمود ہے اور فرش بری کا یہ شہنشاہ محمد ہے۔ آئیو بزرگوں دوستوں کے ساتھیو، آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں مہمان بن کر کے آئے تو میں نے اپنے
सुनने में कुछ देर तक अपने आप आ जाएगा। आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अय्याम अमल में मैं अजीब व गरीब ख्वाब देखा करती थी। जब मैंने अपने सहेलियों को बताया, जब से बच्चा मेरे पेट में मेहमान बनकर आया, मैं हैरत अंगेज ख्वाब देखती हूँ। तो सहेलियाँ कहती हैं, बहन इन अय्याम में साए का असर हो जाता है, आसिफ का असर हो जाता है। हम तो इन अय्याम में लोहे के कड़ा बनवा करके अपने गले में डाल देते हैं। तुम भी ऐसा ही करो, इससे ख्वाब नजर नहीं है। और आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि उनके कहने पर मैंने अपने गले में एक तरह का लोहा बनवाया और अपने गले में डाल दिया। पहले ही रात में एक बुजुर्ग हस्ती, नूरानी चेहरा, सब्ज अमामा, सफेद रीश, खूबसूरत को खास हसीन खान मिल गया। और मेरे करीब आकर दोनों ने अपने शहादत करने से इशारा फरमाया और इशारा करते ही मेरे घड़े के बाहर टूट करके जमीन पर गिर गया। और मैंने परेशानी के आदम को पूछा, बाबा तुम कौन हो और तुमने क्या जुल्म किया? बताया कि बेटी में इब्राहिम खलीलुल्लाह हूँ। मैंने क्यों कहा बेटी में इब्राहिम खलीलुल्लाह हूँ? बेटी तुम्हारे वतन को मुक़द्दस हस्ती है, शिर्क को बिदा उसको फुजूल हम परस्ती के कड़े तोड़ेंगे। बेटी जब ये दुनिया में आएंगे तो हक का बोल वाला। आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अय्याम अमल में उससे खुशबू आएगी। मक्का की औरतों की बात आम हो गई कि सरदार मक्का और मुत्तलिब की बहू निहायत कीमतियत का इस्तेमाल करें। जब ये बात सरकार आलम वसल्लम की दादी मुहतरमा तक पहुँचा और अब्दुल मुत्तलिब ने अपने अहिया पर सरकार दादी मुहतरमा का अपने पास बुलाया और कहा कि आमिना तुम्हारी बहू है, इन अय्याम में जब तुम विवाह की इससे कहो तो खुशबूयात और अद्वियात का इस्तेमाल क्यों करो? हाँ, हज़रत हसन की दादी मुहतरमा बताती हैं, मैंने कई दफ़ा सोचा उनको बुला करके पूछूं, मैंने कई दफ़ा सोचा उनको बुला करके पूछूं, लेकिन आज कल उसकी शख्सियत में ऐसा रूप और जलाल है कि मुझे उससे बड़ा कुछ नहीं पूछूं। और अपने मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु बड़ी प्यार से कि अपनी बहू अपने पास बुलाया और कहा कि बेटी की ज्ञान में जबकि तुम बेवा भी हो, अद्वियात और खुशबूयात का इस्तेमाल क्यों करते हो? ये सुन कर हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा के आंखों में आंसू आ गए। फरमाया क्या खुशबू की बात करते हैं, मैंने तो आज तक बाजार ही नहीं देखी। इन दिनों जो कुछ मैं देखती हूँ अगर आपके सामने बयां करूँ तो आप मुझे पागल और दीवानी करा। मैं धूप में चलती हूँ तो बादल मुझ पे साया करते हैं, दरख्तों के पास से जाती हूँ तो शाखें झुक जाती है। बैतुल्लाह पे नजर डालती हूँ तो अदब बजा जाता है, पहाड़ों पर नजर डालती हूँ तो अदब बजा जाते हैं, दरख्तों और शजर हजर सब मेरे सामने झुक जाते हैं। इंतहा के जो मेरे सहार की निशानी की विरासत के दिन करीब आ रहे हैं, मैं जहाँ झुकती हूँ तो वहाँ से कुछ भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों के साथ वाले आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब विलादत का मरहला शुरू हुआ तो चिराग की रोशनी की जरूरत है। लेकिन जब शहंशाह बता ताजदार मदीना इस दुनिया में तशरीफ लाए तो कमरा इस तरह से रोशन और मनोहर हो गया कि चिराग की रोशनी की जरूरत नहीं है। अब आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि विलादत के बाद एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि मेरा गोद खाली है और पूरे कमरे में बादल के टुकड़े जमा हुए और एक लम्हे के लिए लगा कि मेरा गोद खाली है और बादल के टुकड़ों से ये आवाज आ रही है, या इसकी वनाती और सूरती तूफू भी मशारिक और मगारिबा। इस बच्चे को मशरिक और मगरिब शिमाल और जुनूब सिखा दो ताकि सारा जहान इनके नाम को, इनके जात को, इनके सिफात को, इनके कमाल को पहचान करे। और आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि विलादत के बाद मैंने अपने बेटे को देखना चाहा तो मैं ये देख करके हैरान हो गई कि शहंशाह का इस दुनिया में तशरीफ लाते ही सजदे में चले और सजदे में जाने के बाद अपने शहादत की उंगली आसमान की तरफ इशारा करना। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों साथियों, पहले ही दिन आलम इंसानियत में, पहले ही दिन सरवर कायनात ने तमाम दुनिया को, तमाम आलम इंसानियत को सबक दे दिया। सबसे बड़ी जात मकाना की है, वही मालिक है और उसी के सामने बंदे का सब झुकना है, उसी के सामने बंदे का सब झुकना है। माहिर रमज़ान का महीना आता है तो हम मोहम्मदी बन जाते हैं। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का नारा लगाया। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, सिर्फ माहिर रमज़ान ही नहीं, पूरी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमज़ान में ले गए और उनके तालीम करदा जिंदगी में हम अपनी जिंदगी को नहीं बिताए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मोहब्बत फरमाया, जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया मैं उसके लिए खुशखबरी देता हूँ। लेकिन बहुत बाद के गुजरे के जमाने में आएंगे मतलब यानी वो मुझे नहीं देखेंगे और नहीं देखते हुए भी वो आम नहीं और उस पर ईमान ले आएंगे। मैं मोहम्मद के लिए 3 दिन खुशखबरी सुनाता हूँ, तूबा सुम्मा तूबा। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों के साथियों, अपने दिल का हाल रखें और सोचें कि हमारा आका किसका ख्याल करें, हमारे आका किसका ख्याल करें। फरमाया जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया मैं उसके लिए खुशखबरी सुनाता हूँ। लेकिन बहुत
से नहीं फकीर मिला फिर आए हमारे रब, अगर आप इनको सजा दें तो ये आपके बंदे हैं, अगर आप इनको सजा दें तो ये आपके बंदे हैं, और अगर आप इनकी मग़फ़िरत फरमा दें तो आप ज़बरदस्त नहीं करो, आप मालिक हैं और ये बंदे हैं, और मालिक को हक है कि बंदों को उनके जुराइम की सजा दें, लेकिन आप हिकमत वाले हैं तो आपकी सजा भी आपकी हिकमत के मुआफ़िक़ हो। पूरी रात के आपकी फरमाते हैं और पूरी रात नमाज़ पढ़ते हैं। भाई उस मैदान महशर के वाक़ियात के लिए याद है फरमाया भाई भाई से दूर, माँ बेटी से दूर, बाप बेटी से दूर, माँ बेटी से दूर, ये तो छोटे छोटे रिश्ते हैं। मैदान महशर के सारे लोगों का रिश्ता भुला चुके, ये तो छोटे छोटे रिश्ते हैं। आइए देखिए एक आवाज़ को सुनिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह मैं किसी का सवाल नहीं करता, मेरी जान बख्श दे, नफ्सी नफ्सी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह मैं अपने बेटे इस्माइल का भी हाल नहीं पूछता, मेरी जान बख्श दे, नफ्सी नफ्सी। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह मैं अपने मरियम का भी हाल नहीं पूछता, मेरी जान बख्श दे, नफ्सी नफ्सी। मरियम अलैहिस्सलाम कह रही है या अल्लाह मैं अपने बेटे ईसा का भी हाल नहीं पूछती, मेरी जान बख्श दे, नफ्सी नफ्सी। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह मैं अपने भाई हारून का भी हाल नहीं पूछता, मेरी जान बख्श दे, नफ्सी नफ्सी। शीशा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह मैं किसी का सवाल नहीं करता, मेरी जान बख्श दे, नफ्सी नफ्सी। सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह मैं अपने दाऊद का भी हाल नहीं पूछता, मेरी जान बख्श दे, नफ्सी नफ्सी। यहया ज़करिया अलैहिस्सलाम दोनों शहीद, बाप बेटा दोनों नबी, दोनों अपने रिश्ते नाते भुला चुके हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह मैं अपने अब्बा याकूब का भी हाल नहीं पूछता, मेरी जान बख्श दे, नफ्सी नफ्सी। याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह मैं अपने बेटे यूसुफ का भी हाल नहीं पूछता, मेरी जान बख्श दे, नफ्सी नफ्सी। सारे अंबिया अलैहिस्सलाम अपने रिश्ते नाते भुला चुके हैं। भाई सोचो तो सही, उसी बड़े मैदान में हस्ती भी है, इसकी झोली फैली हुई है और वो कह रहा है या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मैं नहीं फातिमा का सवाल करता हूँ, या अल्लाह मैं नहीं आयशा का सवाल करता हूँ, या अल्लाह मैं नहीं खदीजा का सवाल करता हूँ, या अल्लाह मैं नहीं हसनैन का सवाल करता हूँ, या अल्लाह मैं नहीं आमिना का सवाल करता हूँ, या अल्लाह मैं नहीं अपने वालिद का सवाल करता हूँ, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरी झोली में डाल दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। भाई बुजुर्गों और दोस्तों के साथियों, ताइफ के वाक़ियात पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ की सरजमीन में गए, ज़ालिमों ने 3 मील तक आपको पत्थर बरसाए, दर्द की शिद्दत से भागते थे या आपको भगाते थे और करीब आकर के पत्थर मारते थे। जहाँ तक भाग सकते थे आप भागे, या आपको दौड़ा करके पत्थर मारते, यहाँ तक कि पूरा जिस्म मुबारक का आपका खून से तरबतर हो गया, आपका नानाए मुबारक खून से चिपक गया, यहाँ तक कि सातों फरिश्तों की चीज़ें निकल गई और सातों आसमान के फरिश्ते रोने लगे, सारों कतार रोने लगे। फिर एक दुश्मन के बाद में जाकर के मारे। दुश्मन में कौन था? इतना भी नबिया, इतना बड़ा दुश्मन था कि दुश्मनों की तरफ से जब उसके हाथ में हाजिर था तो देख कर उसको तरस आ जाता है और कहता है कि हाय हाय ताइफ वालों की मोहब्बत का क्या हाल। भाइयों को तरस नहीं आता है, मोहब्बत नहीं आती है, मोहब्बत नहीं आती है। इस हस्ती के लिए अपने रहमत बरसते थे, उसी हस्ती पे ताइफ में पत्थर बरसते थे और ताइफ के वादी में था कि पत्थर हमारे लिए जो बरसता रहा था उसी के तरीकों को पहले से रोजा। ज़रा खुद को बदलाव कैसी वफा है, ज़रा खुद को बदलाव कैसी वफा है। भाई बुजुर्गों के साथियों, हमें चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदलाव के तरीके को अपनी ज़िंदगी में गुजारें और अपना मुराक़बा करें, अपना मुहासबा करें और अपने बारे में हम सोचें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी इसके लिए मेहनत मुशक्क़त की, इसके लिए तरकीब की, क्या उस तरीके पर हमारी ज़िंदगी गुजर रही है? जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो हम महमूदी होने का ऐलान करते हैं, लेकिन फिर वही जगह, वही रवश, वही सुबह, वही शाम। क्या किसी शराबी ने शराब छोड़ दी? क्या किसी ज़िनाकारी ने ज़िना छोड़ दिया हो? कोई बेनमाज़ी नमाज़ पढ़ने लगा हो? कोई माँ बाप की नाफ़रमान अपने माँ बाप के सामने सुलह कर ली हो? कोई गलत